we're gonna be So hey guys, welcome back. This is Durgesh Dubey, owner and the founder of Indian Youth Voice. And I hope, no, I don't know, I believe that you love this content because this content is based on content marketing, content writing, content development, blogging. What is blogger? What are the bloggers doing? What are the ways to start a blog? How to start a blog from the scratch? What are needed? What are the factors matters when you're starting a blog? So nowadays in lockdown period, many of the people are eager to earn money online, right? So many are searching on YouTube, many are searching on Google, and they are googling that what are the ways to earn money online while sitting at home using their Wi-Fi, laptop and mobile phone as well. What are the different ways? So I have made a freelancing series for you guys. I have completed the web designing, web development topic. I have covered the graphic designing part, and I have also covered the blogging part from the scratch to pro. So what are the ways to start from freelancing? How you can earn money while sitting at home through freelancing, and what are the different skills you can learn, right? So what are the ways? आपको तो पता ही होगा, आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो. तो व्हाट आर द वेज टू बी आत्मनिर्भर गाय? सो आत्मनिर्भर बनना होगा तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी बहुत जरूरी है. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कंटेंट राइटिंग. So guys, as we all know, we are covering the topics on the content writing. So how to start content writing? So I have prepared a slide for you guys so that you can learn from each and every step by basic, and we can start blogging from the scratch. So let's begin with the topic content writing. It will be very interesting for you guys if you want to earn money online, right? So let's begin. So as we all are seeing on the computer screen that how to become a content writer, how to start blogging, what are the ways, what are the factors are needed. So what are the content writers? Content writer कौन होते हैं, उनको क्या जानना जरूरी है? तो जैसे अगर आप content writing में start कर रहे हो, तो content writing is a process of planning and writing, editing web content typically for digital marketing purpose. As we all know, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो कंटेंट राइटिंग करते ही हैं. कोई भी ब्रांड हो वो अपने कंपनी के लिए कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखवाएगा, कुछ ना कुछ कंटेंट लिखवाएगा, तो उनके लिए कंटेंट राइटर नीडेड होता है. अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन देना हो तो उसके लिए भी कंटेंट राइटर की नीड होती है. सो कैसे कर सकते हैं स्टार्ट? व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव टू सी. so we are seeing over there, this is it can be include writing blog post, articles, scripts for videos and podcasts, as well as the content for the specific platforms such as Twitter storms on Twitter or the text for the post on Reddit, right? जो कम्युनिकेशन है, ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों से बातें करते हैं, तो लोगों से वीडियो पे भी हम कुछ बातें करते हैं. तो अगर उसी कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? और आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो थ्रू वर्ड्स, मीन्स यू कैन बी द कंटेंट राइटर. So be happy for that. So what are the salaries for the content writer? As we starting from the scratch, let's see. तो कंटेंट राइटिंग की सैलरी कितनी होती है? तो बहुतों को ये डाउट होगा कि अगर हम लोग कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या हमारे पास स्कोप है, क्या स्कोप है कि नहीं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है. तो हम फ्यूचर को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर का पता नहीं क्या होने वाला है, फ्यूचर में बहुत कुछ बदल सकता है. पर जो अभी मूवमेंट चल रहा है, जितना मुझे पता है 10 to 5 years आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ गुड टाइम फॉर स्टार्टिंग ब्लॉग. इनिशियल स्टेज पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 10 to 20 के आराम से आप अर्न कर सकते हो. 10,000 to 20,000 आप ये अर्निंग बड़े आराम से कर सकते हो अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग का नॉलेज है, राइट? अगर आप व्हाट आर द प्रो स्टेज? So as we mentioned, pro stage is 20,000 to 500,000. एंड आप देखो वहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर में अर्निंग होगी वहाँ पर. अगर आप प्रो राइटर बन सकते हो, अरे इतनी तो अर्निंग किसी वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर की भी नहीं होती इंडिया में, राइट? अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो इतनी सैलरी तो आपको जल्दी मिलती भी नहीं है. तो अगर आप 3-4 साल, ये प्रो स्टेज तब के लिए है अगर आप 3-4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से सीख रहे हो, ऊपर से आप ये साइड हसल के साथ ही कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली. तो आप $20,000 अर्न कर सकते हो, सोचो, प्रो स्टेज. और बहुत लोग तो अगर आप उसकी पूरी, अगर आपने कंपनी स्टार्ट कर दी है तो आप $500,000 पर मंथ की भी अर्निंग कर सकते हो. मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो इतनी अर्निंग कर रहे हैं इस वक्त, जो
फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग से डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट, आपको कैसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं फ्रीलांसिंग में, तो उस हिसाब से आप अर्निंग कर पाते हो। तो जैसे टूल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, तो टूल्स तो ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होता नहीं, आपके पास एक अच्छा लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अच्छा बात कर लेते हो और आप हिंदी में वार्तालाप करने में बहुत ही सक्षम है, तो आप हिंदी में ही ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग इंग्लिश में करना चाहते हो, हिंदी में करना चाहते हो, तो भी आपको ग्रामर बहुत मैटर करता है। आप ग्रामर कितना अच्छे से पुट अप कर रहे हो। एक सिंपल लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में अगर नॉर्मली बात भी कर पाते हो, तो भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंग्लिश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। बस लैंग्वेज आपको थोड़ा स्ट्रांग रखना होगा अपना, ताकि लोगों को एंगेज रख सके। ब्लॉगिंग इज अ फैक्टर वेयर वी हैव टू मेक अ गुड क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द विजिटर्स, राइट। तो हम जानेंगे क्या मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल स्टफ से डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे हम गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग गूगल से वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं और गूगल में जाके हम लोग टाइप भी कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं वहाँ पे, और आर्टिकल लिख के उसको पब्लिश कर सकते हैं। एमएस वर्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एमएस वर्ड का नॉलेज है, अगर आपको टाइपिंग आती है, तो भी आप ये सब कर सकते हो एमएस वर्ड से। और पेजेस फॉर द, अगर आप लैपटॉप मैक यूजर है, एप्पल यूजर है, तो आप पेजेस का यूज कर सकते हो। पेजेस इज अ टूल फॉर जस्ट लाइक एमएस वर्ड। व्हाट इज कोडिंग, इज कोडिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप बेसिक स्टेज पे कर रहे हो, डिपेंड्स, इफ नीडेड मोस्टली वी डोंट नीड, राइट। अगर ये जरूरी है नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर कोडिंग कहीं कहीं पे, अगर आपको जब स्टेज अगर आप इंक्रीज हो रहा है, अगर आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो कुछ कुछ छोटी मोटी स्किल्स सीखनी पड़ती है। और कोडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ और डिफिकल्ट होगी नहीं, बहुत छोटी सी कोडिंग होगी, ज़्यादा नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये, और कोडिंग इनिशियल स्टेज पे तो रिक्वायर नहीं है, अगर आप स्टार्ट करो एक दो साल तक, राइट। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कितनी अच्छी सैलरी है, कितना टूल्स के भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ फ्रीलांसर के पोर्टल्स है जहाँ पे आप जाके अपनी फ्रीलांसिंग का स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज हो गया। तो फ्रीलांसिंग पे जाने से पहले हम जानेंगे कंटेंट राइटिंग में क्या होता है। तो देखते हैं ये ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, तो ब्लॉग राइटिंग, चलो आज मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग आज, अभी। आपको क्या करना होगा, blogger.com ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। आपको जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आके आपको कंटिन्यूस एज ए ब्लॉगर स्टार्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो मेरे पास एक साइट खुल गया, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में और क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। और जैसे अगर स्क्रैच से, तो जैसे न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है आपको, न्यू ब्लॉग में आपको यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी डाल सकते हो, न्यू ब्लॉग, आप न्यू ब्लॉगर हो, आपको स्टार्ट करना है, आप एक टाइटल डाल दिया है मैंने, जो ब्लॉग के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट आर्टिकल। और यहाँ पे आपको अपने साइट का एड्रेस डालना है, अपना डोमेन नेम डालना है। तो डोमेन नेम क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट्स हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो एड्रेस है, ये एड्रेस आप कैसे मिलेगा, दी न्यू ब्लॉग डॉट blogspot.com, जो ये है ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आके एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कोई, तो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा। मैंने अभी कर लिया है यहाँ पर द ब्लॉगर लाइफ, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द ब्लॉगर लाइफ से। ये यहाँ पे ये पेज खुला हुआ है, तो हम इसका एक मिनट ब्लॉग देख भी सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ब्लॉग कैसे दिख रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल पेज है। और यहाँ पे हम कंटेंट डालेंगे कैसे, आप पोस्ट में होगे, पोस्ट में आना है आपको। पोस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पोस्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट न्यू पोस्ट। प्रॉब्लम आ रहा है, मैं घर पे शूट कर रहा हूँ और ये डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा। क्रिएट न्यू पोस्ट, यहाँ पे आके आपको क्रिएट करना है, और क्रिएट करते ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा आपका काम करना है। यहीं से आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे पॉइंट लिखना है, द न्यू ब्लॉगर लाइफ। आप यहाँ पे ब्लॉगर लाइफ एक टाइटल डाल दिया, फिर आप यहाँ पे कोई तो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास कुछ है नहीं,
तो मैं यहाँ से एक कमांड कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर डाल दिया। अब जो ये लाइन आ गई है, अब इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप बहुत कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप इसको लिंक भी कर सकते हो, इंटरनल लिंकिंग। जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर लिंक करूँ तो एक दूसरे साइट से ऐड होके लिंक हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉग है जहाँ पे हमने कुछ लिखा है और ये काफ़ी कम है, तो थोड़ा इसको कॉपी पेस्ट करके हम सिर्फ टेक्स्ट इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लॉग आ चुका है। कुछ थोड़ी सी आर्टिकल है जो कि मैंने कॉपी पेस्ट की है। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद की कंटेंट लिख के यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है। ये एक ब्लॉग रेडी कर लिया मैंने, स्पेस तो ऐसे ही दे दिया। आप यहाँ पे टैग लगा सकते हो और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आके पब्लिश कर देना है। पब्लिश के बटन पे दबाते ही आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा और इसको फिर से आप एडिट कर सकते हो। मैंने कोई इमेजेस नहीं डाले, तो एक इमेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज आते हैं और एक अपने ही इमेज को अपलोड करते हैं। यहाँ से चूज फ्रॉम द फाइल्स। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कि सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो, बहुत लेट कर रहा हूँ मैं। पर ऐसा आपको स्क्रैच से सीखना है तो आप थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। मैं पूरी डिटेल में आपको पूरी वीडियो बता रहा हूँ, ईजी तरीके हैं। अब जैसे आपने ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। तो पहले भी हम लोग ने पब्लिश किया था और अब देख रहे हैं कि अपडेट करने के बाद कैसा दिखेगा। अब ये ब्लॉग अगर आपको व्यू करना है तो आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हो, या फिर व्यू योर ब्लॉग, यहाँ पे जाके आपको पूरी ब्लॉग दिख जाएगी। ये देखो, ये जो मैंने अभी लिखा सिंपली ब्लॉग पब्लिश हो गया। कुछ हुआ यहाँ पर, कुछ मेहनत ही नहीं। आपको बस मेहनत यहाँ पे होगी, आपको खुद की लैंग्वेज यूज करना है, आपको प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट जनरेट करना है। प्लेगरिज्म क्या होता है मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया, लेटर वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो। आप यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ आपको एक पोस्ट बना के डालनी है, कुछ 100 300 400 500 वर्ड्स, डिपेंड्स ऑन यू हाउ कैन यू राइट, राइट। सो जैसे ये ब्लॉग पब्लिश हो गई, ये आपको नजर आ रहा है। आप इसमें थोड़ी एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और पेजेस ऐड कर सकते हो। ये आपका होम है, आपने ये ब्लॉग डाल दिया है और ये ब्लॉग पब्लिश हो गया। तो बहुत सिंपल होता है ब्लॉग पब्लिश करना। ये देख सकते हो, ये फ्री ब्लॉग है। आप फ्री में ब्लॉग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेड नहीं है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे ब्लॉगर के। क्यों? क्योंकि जो blogspot.com आप यहाँ देख रहे हो, ये blogspot.com की वजह से हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे। क्योंकि अगर आप इसको हटाओगे, ये एक्सटेंशन blogspot का हटा दोगे, तो आपको यहाँ पे पेड करना पड़ सकता है। क्योंकि आपने जो ट्रेनर 1999 है, ये आपको बाय करना होगा। ये डोमेन बाय करना पड़ता है। तो हम डिस्कस करते हैं डोमेन क्या होता है। तो ब्लॉग में डोमेन क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉग। हमने जो डिस्कस किया आपको पता चल गया होगा। ब्लॉग मतलब एक स्क्रिप्ट होती है, कुछ राइटिंग होती है, जो जहाँ पे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं। तो अब देखेंगे ये क्या होता है। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग। ब्लॉग इज इट वेबसाइट, ब्लॉग इज सिमिलर टू द वेबसाइट। ब्लॉग भी एक तरीके का वेबसाइट बोल सकते हो। आप अपनी फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री में वेबसाइट क्रिएट करने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं मिल सकता। आप ब्लॉगस्पॉट पे जाके अपनी फ्री वेबसाइट बना लीजिएगा। आप वहाँ पे पोर्टफोलियो भी अपनी बना के रख सकते हो। व्हाट इज ब्लॉग आप हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है। यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, जो स्पेस है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे google.com हो सकता है, यहाँ पे आपका नाम, या फिर योर डोमेन नेम .com, word.com, bing.com, youtube.com, yahoo.com। ये याहू है, गूगल है, ये सारे के सारे डोमेन नेम है। ये तो एक्सटेंशन दिए गए हैं जहाँ पर हमें वर्ल्ड वाइड ये commercial.com मतलब कमर्शियल अकाउंट है, कमर्शियल आईडी है, जो कि अब पूरे ग्लोबल होता है। ये .com आप ग्लोबली शेयर कर सकते हो। ये .in होता है, .net होता है। .in मतलब अगर आप इंडिया में टारगेट कर रहे हो अपने ब्लॉग के पोस्ट को, जहाँ पे विजिटर्स आएंगे, तो .in ले सकते हो आप। होस्टिंग से बहुत सारी होस्टिंग्स होती हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक चीज, जैसे ये प्लॉट है, राइट, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक प्लॉट है, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये एक प्लॉट है जहाँ पर हमें अपना बिल्डिंग बनाना है।
तो कुछ टाइम बाद हम इस पे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर करेंगे। बिल्डिंग जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ये जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ये है एक सर्वर रूम। आप इसको एक मान लीजिए एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसके पास बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारे फ्लोर्स है। अब इसमें हर एक फ्लोर पे अलग अलग रूम्स होंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग मतलब आपका एक एड्रेस है। अगर आप घर में मतलब कहीं भी आप जाते हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप ढूंढ रहे हो किसी चीज को गूगल पे, या फिर आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, पोस्टमैन ढूंढता है या फिर आपके घर पे पोस्ट लेके आता है, आप कहीं बाहर दोस्त के घर पे जाते हो, उसको पता, आप उसका एड्रेस पूछते हो, तो जो एड्रेस है वो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वो डोमेन नेम है जो आपको मिला है, और .com एक्सटेंशन आपको ये सब होस्टिंग से मिलेगा। और ये स्पेस यहाँ पर जो मिलेगी, आप वहाँ पर उस स्पेस में आपका घर बनाओ, उसके अंदर आप इंटीरियर डिजाइन करो। वो हमारी वेबसाइट होती है। जो स्पेस मिलेगा, एक कमरा होगा, उस कमरे में हम अपने घर को अच्छी तरीके से इंटीरियर करेंगे ताकि वो अच्छा लगे। जब कोई आए उसको ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाए, उसका मन करे ऐसा, अरे वाह क्या घर है, विजिट करना चाहिए हमारी। इसे तो अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, इतना महंगे घर में रह रहा है। बिल्डिंग तो देखो कितनी शानदार लग रही है, ऐसे बिल्डिंग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, एक कमरा है, उस कमरे में आप कितना अच्छा इंटीरियर कर रहे हो। तो इसको मान लो कमरा आपकी वेबसाइट है। आप वेबसाइट जैसे मैंने आपको दिखाई, उसको आप जितना अच्छा डेवलप करोगे, जितना अच्छा डिजाइन करोगे, उतना अच्छा विजिटर्स आएंगे आपके पास। जितने अच्छे कंटेंट पब्लिश करोगे, जितने अच्छे ब्लॉग पब्लिश करोगे, उतने ज़्यादा आपके पास ब्लॉग विजिटर्स आएंगे, आपके ब्लॉग रीड करेंगे, तो उनको पता चलेगा वाओ दैट्स ग्रेट, बंदे में दम है, कुछ तो अच्छा किया है इसने ब्लॉग में। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल एग्जांपल था, एक डोमेन नेम जो आपका एड्रेस है, होस्टिंग प्रोवाइडर आपको एक स्पेस देता है जहां पर आप अपने डोमेन को रजिस्टर करके अपनी वेबसाइट को स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर्ड प्लेस में आप कुछ भी डालो, वो आपको एक स्पेस दिया है, आपको एक एरिया दिया है। उस एरिया में आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप वेबसाइट की डिजाइन कर सकते हो, आप बहुत सारे कंटेंट डाल सकते हो, आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर सकते हो। वो सारे के सारे आपकी होस्टिंग स्पेस जो आपको मिली है उसके अंदर आप, जैसे 1-2 जीबी की रहती है, आप वहां पे जाके अपलोड होती रहेगी आपकी पूरी, वहां पर एक वेबसाइट रेडी होते रहेगा। तो वो एक बैकएंड का काम होता है होस्टिंग प्रोवाइडर का। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्लॉग क्या है, डोमेन नेम क्या है, तो आपको होस्टिंग भी पता चल गया। तो ब्लॉग करने के बाद आप सीख गए, ब्लॉग लिखना सीख गए, आपके पास ब्लॉगिंग की स्किल आ गई, तो आप अर्निंग कैसे करोगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको freelancers.com, upwork.com, fiverr.com, फेसबुक ग्रुप्स, आप फेसबुक में जाके ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे अपनी बहुत सारे लोग रहते हैं जो पूछते हैं कि वी नीड कंटेंट राइटर, तो आप वहाँ पे कंटेंट राइटर का अपना वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर सकते हो। आप पर्सनली उनको ऐड फ्रेंड करके आप उन पे बात करके आप कंटेंट राइटर का जॉब वहाँ से आप ले सकते हो। तो लिंक्डइन से भी, लिंक्डइन तो सभी के लिए है, आप लिंक्डइन पे जाइए और अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि वो बहुत मस्ट है। क्योंकि अगर आपका खुद का कुछ प्रोफाइल नहीं होगा तो आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। लिंक्डइन बहुत मैटर करता है यहाँ पर। लिंक्डइन से आप कोई भी जॉब ले सकते हो, आप फुल टाइम जॉब आपको मिल सकती है। बहुत लोग डिपेंड होते हैं वैसे लिंक्डइन पे, तो आप भी जाके अपना अकाउंट बना लीजिए, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कंटेंट राइटिंग का जॉब। तो अब जानेंगे कि कंटेंट राइटर का काम क्या होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्लॉगिंग, हमने एक ब्लॉग बनाया, पब्लिश किया, फटाक से बहुत जल्दी हो गया, और इस ब्लॉग को पब्लिश करने के बाद हमें पता चला कि ओ ऐसे ब्लॉग तो बन गया। अब करना क्या है, ब्लॉग किस किस टाइप के होते हैं, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, आप लैपटॉप बेच रहे हो, मोबाइल में, मतलब कोई भी कंपनी को कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सेल करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देगी, वो डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो भी एक कंटेंट राइटर का काम है। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, आप वेबसाइट पे देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। आर्टिकल राइटिंग, जैसे हमने डिस्कस किया ब्लॉग लिखा है एक, वो एक टाइप का आर्टिकल है, उस आप बहुत सारी आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो। न्यूज़ वेबसाइट से आप वहाँ पे जॉब आपको मिल सकती है। टेक्निकल राइटिंग, जैसे टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, जैसे हमने एक लैपटॉप की बात की और इसके अंदर जो सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स को यूज़ करने के तरीके को, वो आप टेक्निकल राइटिंग आप उसको कह सकते हो। बिजनेस ईमेल मार्केटिंग, बहुत लोग को बिजनेस, बहुतों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए उनको कंटेंट चाहिए रहता है, उनको कुछ पैराग्राफ चाहिए होते हैं, उसके लिए आप बिजनेस ईमेल मार्केटिंग, वो भी एक पार्ट है कंटेंट राइटर का। कॉपी राइटिंग,
कॉपी राइटिंग क्या होता है? दे आर नॉट अ कंटेंट राइटर्स, दे मेक द बाय टू स्टफ, राइट? वो कॉपी राइटर मतलब क्या? वो कॉपी राइटर कंटेंट राइटर तो होता है, पर वो फुल्ली कंटेंट राइटर सेम कंटेंट राइटिंग नहीं करता। ये क्रिएटिव राइटर्स होते हैं। वो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो आपको कोई चीज बाय करने पे मजबूर कर दे। अगर आप कहीं पे कुछ कोई ऐड देखते हो, वाओ कितना अच्छा ऐड है, कितना अच्छा लिखा है डिस्क्रिप्शन, आपको इतना क्रिएटिव वे में लिखते हैं ना वो लोग। कॉपी राइटिंग मतलब वो प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप मोबाइल फोन आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं सैमसंग का। सैमसंग का जो मोबाइल फोन है S10 गैलेक्सी लॉन्च किया है हमने, उसके अंदर ये फीचर्स है। उसकी जो बैक स्पेस है वहां पे आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आज तक किसी मोबाइल में शायद ही ऐसा हुआ होगा। ये सीधा आपको रेनबो का फील कराएंगे। ऐसा जितनी क्रिएटिविटी निकल सकती है कॉपी राइटिंग में निकलती है लोगों की। एसईओ राइटिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। आप ये एसईओ राइटिंग सीख जाओ तो आपको सिर्फ एसईओ राइटिंग का जॉब मिलता है। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। एसईओ राइटिंग मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप ऐसे ब्लॉग लिखना जो कि सर्च इंजन में टॉप पे आए। कंटेंट राइटिंग लिखना बड़ी बात नहीं है, कंटेंट राइटिंग करना बड़ी बात नहीं है। आपका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे आना चाहिए, क्योंकि गूगल पे लोग टॉप 10 लिंक्स पे जाते हैं, टॉप 10 लिंक में ही ओपन करते हैं। क्यों? आप चाहते हो ना आपका गूगल में ट्रैफिक बढ़े, लोग आए, तो उसके लिए हम एसईओ राइटिंग करते हैं। हमने ब्लॉग लिखी, उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा जिसमें लोग हमारे लिंक पे आए, ओपन करें और उस ब्लॉग को पढ़ें। और क्यों, कैसे पढ़ेंगे? जब आप उसमें अच्छी तरीके से एसईओ करेंगे। न्यूज़लेटर्स, इसमें आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप कुछ टाइम बाद जब प्रॉपर प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको न्यूज़लेटर्स भी समझ में आएंगे, जहाँ पे आपको आपको प्रमोशंस करने होते हैं अपने कंटेंट्स के थ्रू। आप ई बुक्स लिख सकते हो, ई बुक्स क्रिएट कर सकते हो कंटेंट राइटिंग के लिए। आप बहुतों को बुक पब्लिशिंग नहीं पता होगी, तो ये जो ई बुक्स आप देखते हो पीडीएफ फॉर्म में देखते हो, वो सारे प्रॉपर तरीके से कंटेंट राइटर अगर आप हो तो आप ई बुक्स पब्लिश कर सकते हो। तो इतने सारे जॉब्स देखे, ये सारे जॉब्स हैं। और इससे अर्निंग कितनी कर सकते हैं हमने डिस्कस की 20,000 की टू 500 की, अगर आप प्रो स्टेज पे पहुंच जाते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर है, इनिशियल है, ब्लॉगिंग में थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुतों को ऐसा होता है कि ब्लॉग स्टार्ट किया और अर्निंग हो गई, ऐसा नहीं है। ब्लॉग स्टार्ट करो, आप उसमें प्रॉपर तरीके से सीखो, स्किल्स डेवलप करो, अपने कंटेंट राइटिंग की वेज को समझो, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। फ्रीलांसिंग्स पे जाओ, आप वहाँ पे अप्लाई करना ट्राई करो, आपको वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और कुछ टाइम बाद अपने आप ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर सकते हो। गूगल एडसेंस, जैसे आप गूगल पे एड्स देखते हो तो आप अपने ब्लॉग्स पे भी लगा सकते हो। तो हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ब्लॉगिंग पे पूरा ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा। कंटेंट राइटिंग, एसईओ राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, एक एक प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब चाहिए। तो आप देख रहे हो ये सारी स्किल्स अगर आपके पास आ गई तो कितना मजा आ जाएगा, आप कितना कुछ अर्न कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल है बहुत कुछ। कंटेंट राइटिंग इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद थ्रू वर्ड्स। आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो वर्ड्स के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, वो डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and